Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter first of EVS. Chapter name is Family and Relationship, यानी कि परिवार और रिश्ता. First come on lesson spotlight, some points are there. Why do people shift? लोग shift क्यों करते हैं? Migration and its effect. Migration और उसके प्रभाव. Embracing change together. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions also. Why do families move to new places? परिवार नई जगह पर मूव क्यों करते हैं? How can the environment be the reason for a family to move? किसी परिवार के मूव करने के यानी कि स्थानांतरित होने का कारण पर्यावरण कैसे हो सकता है? What changes do kids face when they move? जब बच्चे मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो उन्हें किस प्रकार के बदलावों का सामना करना पड़ता है? We will discuss about the answer of these questions in our chapter. A family consists of people living together and sharing some relationship. एक परिवार में एक साथ रहने वाले और कुछ रिश्ते साझा करने वाले लोग शामिल होते हैं. A family can be big or small. एक परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है. Earlier, many generations lived in the same house, but now circumstances have changed. पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं. Let us understand the various reasons why family members shift to the other places. आइए उन विभिन्न कारणों को समझें जिनके कारण परिवार के सदस्य अन्य स्थानों पर शिफ्ट करते हैं. Why do people shift? लोग शिफ्ट क्यों करते हैं? People shift from one place to another for several reasons. लोग कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं. This shifting is called migration. इस शिफ्टिंग को माइग्रेशन यानी कि प्रवासन कहा जाता है. Let's try to understand some reasons. तो चलिए कुछ रीजन जानने का प्रयास करें. Environmental reasons for moving यानी कि स्थानांतरण के पर्यावरणीय कारण. Sometimes families move because of environmental reasons like drought, floods और even pollution. कभी कभी सूखा, बाढ़, यहाँ तक कि pollution जैसे पर्यावरणीय कारणों से परिवार मूव करता है. For example, if a farmer's land becomes too dry to grow crops, they might move to a city for better job opportunities. उदाहरण के लिए यदि किसी किसान की ज़मीन फसल उगाने के लिए ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो वह बेहतर नौकरी के ऑप्शन यानी कि अपॉर्चुनिटी अवसरों के लिए शहर में जा सकते हैं. दिस इज़ अ हार्ड डिसीजन बट नेसेसरी फॉर द फैमिलीज सर्वाइवल एंड वेलबींग. यह एक हार्ड डिसीजन है, कठिन निर्णय है, लेकिन परिवार के अस्तित्व और वेल बीइंग के लिए आवश्यक है. Jobs. Sometimes a person might get a new job in a different place. कभी कभी किसी व्यक्ति को किसी भिन्न स्थान पर नई नौकरी मिल सकती है. This job might be better for him or might pay more salary which will help the family. यह नौकरी उसके लिए बेहतर हो सकती है या अधिक सैलरी दे सकती है जिससे परिवार को मदद मिलेगी. When this happens, the whole family packs their bags and moves to where the new job is. जब ऐसा होता है तो पूरा परिवार अपना बैग पैक करता है और नई नौकरी वाली जगह चला जाता है. In the new city, there might be new adventures waiting like a big swimming pool or a library full of interesting books. नए शहर में नए एडवेंचर इंतजार कर रहे होंगे जैसे कोई बड़ा स्विमिंग पूल या इंटरेस्टिंग किताबों से भरी लाइब्रेरी. Education and opportunities. Parents always want the best for their kids, especially when it comes to school. माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, खासकर जब स्कूल की बात आती है. If there's a school in another city that has excellent teachers or state of the art facilities
like an AI lab or a fashion designing lab, families might decide to move there. यदि किसी दूसरे शहर में कोई स्कूल है जिसमें उत्कृष्ट शिक्षक या AI जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं, लैब या फैशन डिज़ाइनिंग लैब, परिवार वहाँ जाने का निर्णय ले सकते हैं. Children might use this as an opportunity to learn new things and follow their aspiration. बच्चे इससे नई चीज़ें सीखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं. Bigger or smaller houses. As families grow, they might need more space for accommodation. जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं, उन्हें आवास के लिए अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है. Maybe a new baby is coming or the kids are growing and need their own rooms. हो सकता है कि कोई नया बच्चा आ रहा हो या बच्चे बड़े हो रहे हों और उन्हें अपने कमरे की आवश्यकता हो. Sometimes the situation is just the opposite. कभी कभी क्या होता है, जो स्थिति होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है. The house is too big to maintain and live in, so the family moves to a smaller, cozier place that suits their needs and requirements. घर रख रखाव और रहने के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए परिवार एक छोटी आरामदायक जगह पर चला जाता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो. Let us look at some examples. आइए कुछ उदाहरण देखें. नीलम and नितिन lived happily in the village. नीलम और नितिन गांव में खुशी से रहते थे. They went to the village school and their parents worked in the field. वे गांव के स्कूल में पढ़ते थे और उनके माता पिता खेतों में काम करते थे. There were no rains in the village for 3 years. 3 साल तक गांव में बारिश नहीं हुई. नीलम heard them refer to terms such as drought and crop failure. नीलम ने उन्हें सूखे और फसल की बर्बादी जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए सुना. Then they decided to leave their village and shift to the neighboring town. तब उन्होंने अपना गांव छोड़कर पड़ोसी शहर में रहने का फैसला लिया. नितिन and नीलम्स पेरेंट्स took up new job. नीलम और नितिन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने नई नौकरी ले ली. नीलम and नितिन sorely missed their village. नीलम और नितिन अपने गांव को बहुत याद करते थे. However, in time they were able to settle down in the new place. हालांकि समय के साथ वे नई जगह पर बसने में सक्षम हो गए. They started going to a new school in the town where they made lots of friends. वे शहर के एक नए स्कूल में जाने लगे जहां उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए. तानिया and her family have just moved to the big city. तानिया और उसका परिवार अभी अभी बड़े शहर में आए हैं. Her father works in a shop in the city. उसके पिता शहर में एक शॉप पर काम करते हैं. Till now, Tanya and her brother were living with their grandparents in the village. अब तक तान्या और उसका भाई गांव में अपने दादा दादी के पास रह रहे थे. They used to go to a small village school. वे एक छोटे से गांव के स्कूल में जाते थे. But now, her father wanted Tanya and her brother to go to school in the city. लेकिन उसके पिता चाहते थे कि तान्या और उसका भाई शहर के किसी अच्छे स्कूल में जाए. तान्या believes that the city is a beautiful place because it is very big and unique. तान्या का मानना है कि शहर एक ब्यूटीफुल प्लेस यानी कि खूबसूरत जगह है क्योंकि यह बहुत बड़ा है और अनोखा है. But she misses her grandparents. After all, it was great fun to live in a joint family. लेकिन उसे अपने दादा दादी की याद आती है क्योंकि संयुक्त परिवार में रहना बहुत मज़ेदार था. माइग्रेशन एंड इट्स इफेक्ट यानी कि प्रवासन और उसके प्रभाव. मूविंग कैन मेक यू फील मैनी थिंग्स. मूव करना आपको कई चीज़ें महसूस करा सकता है.
You might feel excited to make new friends but also sad to leave old ones behind. आप नए दोस्त बनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं या उत्साहित महसूस कर सकते हैं, लेकिन पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए भी दुख हो सकता है. It is normal to experience a mixture of anxiety and happiness. और यह चिंता और खुशी का एक मिक्सचर है जो सामान्य है. New friends and experiences. In a new place, you will meet new people and try new things. नई जगह आप नए लोगों से मिलते हैं और नई चीज़ें आजमाते हैं. Maybe you will find a new sport you love or a new favorite food you have never tasted earlier. हो सकता है कि आपको कोई नया खेल मिले जो आपको पसंद हो या कोई नया फेवरेट फूड मिले जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया हो. Staying in touch यानी कि संपर्क में बने रहना. Thanks to phones and the internet, you can still talk to and even see your old friends and family no matter where you are. फोन और इंटरनेट की बदौलत आप अभी भी अपने पुराने दोस्तों और परिवार से बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें देख भी सकते हैं चाहे आप कहीं भी हों. You can share stories about your new adventures and listen to theirs too. आप अपने नए एडवेंचर्स की कहानियाँ उन्हें बता सकते हैं और उनकी कहानियाँ भी सुन सकते हैं. Take a look at fact file. The World Bank predicts that by 2050, there could be over 143 million climate migrants moving due to reasons like drought, floods and sea level rise. विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 यानी कि 2050 तक 143 मिलियन से अधिक जलवायु प्रवासी सूखे, बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे कारणों से पलायन कर सकते हैं. Now time to pause. Write down 3 things you would miss if you move to a new place. यदि आप किसी नई जगह शिफ्ट करते हैं तो आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें मिस करेंगे. You have to write here 1, 2 and 3. Take a look at glossary. Drought. A long period without rain which can cause a shortage of water. वर्षा के बिना एक लंबी अवधि जिससे पानी की कमी हो सकती है. Anxiety. Feeling of fear and uneasiness that may occur due to stress. डर और बेचैनी की भावना जो तनाव के कारण हो सकती है. Environment. The natural world of surroundings in which a person, animal or plant lives. प्राकृतिक संसार या परिवेश जिसमें कोई व्यक्ति, जानवर या पौधा रहता है. Now, assessment time. Tick write the correct option. Why do families sometimes move to a new place? Families जो होती हैं वो कभी कभी नई जगह पर मूव किस लिए करती हैं? जॉब, स्पोर्ट्स, शॉपिंग. फॉर जॉब्स. What can you make in a new city? आप नई सिटी में क्या बना सकते हैं? Friends. What helps you stay connected with old friends after moving? मूव करने के बाद किसकी हेल्प से आप अपने जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट रह सकते हैं? With the help of internet. What does moving teach us? मूव करना हमें क्या सिखा सकता है या क्या सिखाता है? Adaptation. Some alternative questions are there. Fill in the blanks. First, families might move to a different city in a parent gets a new job. When families need more space or less space, they might move to a big or small house. जब फैमिली मेंबर्स को बड़ी या छोटी जगह की आवश्यकता होती है तो वो बड़े या छोटे घर में मूव कर जाते हैं. नीलम एंड नितिन had to leave their village due to
नीलम और नितिन को जो अपना गांव है वो किस कारण से छोड़ना पड़ा? ड्राउट एंड क्रॉप फेलियर. After moving, Tanya and her brother started going to a मूव करने के बाद तान्या और उसके ब्रदर ने सिटी में कहाँ जाना स्टार्ट किया? न्यू स्कूल. मूविंग टू अ न्यू प्लेस कैन टीच यू हाउ टू. एक नए प्लेस पर मूव करना आपको क्या सिखाता है? हाउ टू एडेप्ट and find happiness. Tick right against true and cross against false statement. First, families only move to a new place for new opportunities. Families जो हैं वो न्यू प्लेस पर सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उनकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सिर्फ उनके लिए शिफ्ट करते हैं. इट्स रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके कारण फैमिली मूव करती है. नीलम एंड नितिन्स फैमिली मूव बिकॉज ऑफ अ ड्राउट इन देयर विलेज. इट्स राइट. तान्या मूव टू द सिटी फॉर बेटर स्कूलिंग. इट्स राइट. मूविंग टू अ न्यू प्लेस ऑलवेज मीन्स लूजिंग टच विद ओल्ड फ्रेंड्स. एक नए स्थान पर जाना हमेशा अपने जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उनसे टच खोना होता है. इट्स रॉन्ग. मूविंग कैन टीच यू हाउ टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन. मूव करना आपको सिखाता है कि आप नई सिचुएशन में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं. इट्स राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वाई डिड नीलम एंड नितिन्स फैमिली मूव टू अ न्यू टाउन. नीलम और नितिन की फैमिली में नए टाउन में मूव क्यों किया? What are some reasons that families might decide to move to a different place? कौन कौन से ऐसे नए रीज़न होते हैं जिनके कारण परिवार किसी अन्य स्थान पर जाने का निर्णय लेता है? How can moving to a new place be both exciting and challenging? किसी नई जगह पर जाना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कैसे हो सकता है? In what ways can families stay connected with friends and relatives after they move? मूव करने के बाद परिवार और जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप किस माध्यम से जुड़े रह सकते हैं? How does moving to different places help children learn and grow? विभिन्न स्थानों पर जाने से बच्चों को सीखने और बढ़ने में कैसे मदद मिलती है? You have to find the answer of these questions in your chapter. Now time to fun activity. Shifting is a huge process. It involves planning, packing, loading and unpacking. शिफ्टिंग है ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है या बड़ी प्रक्रिया है. इसमें प्लानिंग करना, पैकिंग, लोडिंग, अनपैकिंग शामिल है. हैव यू एवर शिफ्टेड योर होम विथ योर फैमिली? राइट अबाउट योर ऑन एक्सपीरियंस. क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ अपना घर बदला है या शिफ्ट किया है? अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर लिखें.